Good morning, children. Welcome to English class. My name is Rosie, and we have not seen each other, but soon we will be able to see each other. Hope this pandemic gets over very soon. We will do a new chapter today, The Gift of Maggie, lesson number 13, page number 103. But before this, let us recall what we have done in our last class. Last chapter which we did was Finding Potley. It was about two friends, a rat and a mole, and the third friend was Otter. So I had given you the bookwork also, the question answer solved, everything is given to you. I hope you all had completed your notebook. It could be asked anytime. I want you to complete, all of you, I want you to complete your notebooks nicely, neatly, and in good handwriting. Other thing is, I can be taking test of it anytime, a surprise test. So before I'll take a test, I will revise the answers with you, the bookwork also with you. So shall we start with the new chapter? I hope you all have pencils in your hand. All right. Lesson number 13, The Gift of Maggie, page number 103. It's a beautiful story about a husband and a wife. Wife's name is Della and her husband is Jim. Okay. So they are both a very loving couple, but they are not very sound. The story is of 24th December evening, and the next day was Christmas. Now, Della wanted to give a gift to her husband. She wanted to give a very beautiful present to her husband on Christmas, but she did not had enough money. Same way, her husband also wanted to give her a very beautiful gift. He wanted to give his wife a very beautiful gift. He also did not have enough money. So what they do to buy a gift is, Della had very beautiful hair, and what she does is she cut those hairs and she sells them. और जो sell करने के बाद she get the money, she buys a beautiful gift for her husband. What the gift was? That gift was a chain for her husband's gold watch. So what her husband is doing is, meanwhile, he also sells that watch and he buys a set of comb for his wife. But what happened is, now both the gifts are useless because Della had cut off her hairs, and Jim also had sold his gold watch, which was very precious to him. He just sold it to buy a gift, a very beautiful set of comb for his wife. But both the gifts are now useless. She has lost her hair and he had lost his watch. So how the story goes on is, I'll explain it to you in Hindi also. इस स्टोरी में एक हस्बैंड वाइफ है, डेला और जिम, और क्रिसमस की इवनिंग की बात आई, 24th की, 25th इज क्रिसमस. तो वो एक दिन पहले सोचती है कि मुझे मेरे हस्बैंड के लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट लेना है. तो वो क्या करती है, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपने बाल, बहुत लंबे बाल थे उसके, और वो उनको कटवा कर बेच देती है. उससे वो अपने हस्बैंड के लिए एक चेन लेकर आती है, बहुत सुंदर. वो चेन उसके पति के पास बहुत अच्छी वॉच थी गोल्ड की, उस वॉच में डालने के लिए वो चेन लाती है. और उसका पति मीनवाइल उसके पास भी पैसे नहीं थे, तो व्हाट ही डज इज, वो क्या करता है, वो भी अपनी जो गोल्ड वॉच है वो सेल कर देता है. वो हालांकि उसको बहुत प्रीशियस थी, स्टिल वो उसको सेल कर देता है और अपनी वाइफ के लिए बहुत सुंदर कोम्स का सेट लाता है. दैट्स अ वेरी प्रीशियस एंड एक्सपेंसिव सेट ऑफ कोम्स, और जिसमें बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए थे ब्यूटीफुल. बट दोनों के पास वो चीज़ को यूज़ करने के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. वो बाल कटवा चुकी है तो वो कोम्स उसके काम नहीं आएंगे, और जिम अपनी वॉच सेल कर चुका है इसलिए उसके वो चेन काम नहीं आएगी. तो वो दोनों बहुत उदास होते हैं. देन दे मूव ऑन. ओके, सो वील स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. पे अटेंशन, टेक द पेंसिल इन योर हैंड. ओके, we'll start with the chapter. $1.87. That was all she had, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved 1 and 2 at a time by haggling with the grocer and the vegetable man. 3 times Della counted it. $1.87, and the next day would be Christmas. For months, Della had been saving every penny she could. So this lesson starts with the line $1.87, means she's sitting and she's counting the money.
वो पैसे गिन रही थी बार बार, कितने पैसे हैं, $1.87, और जिसमें से 60 सेंट्स तो वो एक एक पैसा करके एक एक पैसा है। तो वो कैसे उसने सेव किए थे, उसने सब्जी वाले के साथ और जो कुछ गली में सामान बेचने के लिए कुछ भी आते हैं ग्रोसर्स, उनके साथ बार्गेनिंग कर करके उसने ये पैसे सेव किए थे। इसीलिए वो खुले पैसों में थे, जिसको हम बोलते हैं छुट्टे पैसों में थे। 3 times डेला काउंटेड इट, उसने बार बार काउंट किया, 3 बार काउंट किया। $1.87 एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगला दिन तो क्रिसमस है। कितने महीनों से डेला ने ये पैसे सेव किए थे। वो प्लान कर रही थी एक अच्छा सा गिफ्ट अपने हस्बैंड के लिए खरीदने के लिए। शी हैड बीन प्लानिंग टू बाय सम नाइस क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड जिम। शी लव जिम मोर देन इवन हर लाइफ, वो अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा जिम से प्यार करती थी। जिम अर्नड ओनली $20 अ वीक, जिम सिर्फ $20 एक वीक में कमा पाता था। आउट ऑफ इट $8 वेंट फॉर द रेंट ऑफ देयर फ्लैट, जिसमें से $8 उनके फ्लैट का रेंट था, और जो रिमेनिंग $12 थे दे कुड हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट। तो उन बचे हुए जो $12 थे उनको सब अपने खर्चे चलाने पड़ते थे, जो बचे कुचे घर के और उनके एक्सपेंसेस थे, दे हैड टू मैनेज इट in that $12. And with all her parsimony, Della had been able to save only $1.87. Parsimony is unwillingness to spend money, और किसी चीज़ को बहुत कंजूसी से वो करना, उससे उसने क्या बचाया, सिर्फ $1.87. It was Christmas Eve and poor Della could do nothing but cry. अब क्रिसमस की शाम आ चुकी थी और वो पुअर डेला, व्हाट शी वाज डूइंग वाज शी वाज जस्ट क्राइंग। सॉरी, क्रिसमस ईव, व्हाट इज क्रिसमस ईव मीन्स इज इट वाज 24th इवनिंग, 25th अभी आनी बाकी थी, ओके माइंडेड। शी डिडंट नो हाउ शी वुड गेट अ गुड प्रेजेंट फॉर हर जिम। शी फ्लॉप डाउन ऑन द लिटिल काउच एंड बिगिन टू क्राई। काउच इज सोफा, तो उनके घर में छोटा सोफा था जिसके ऊपर वो लेटकर रोने लगी। Then suddenly she got up and stood before the mirror, और वो अचानक से खड़ी होती है एकदम से, और शीशे के सामने जो उसके रूम में था वहाँ खड़ी होकर खुद को देखती है। A brilliant shine come to her eyes. A brilliant shine came to her eyes means उसकी आंखों में एक चमक आती है। Though her face had lost its color, but उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था already, but still उसकी आंखों में चमक थी। Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. तो वो अपने बालों को खुला छोड़कर देखती है कि कितने लंबे मेरे बाल हैं। जिम एंड डेला हैड 2 possessions इन द फैमिली। जिम और डेला की 2 ही पोजेशंस थी। पोजेशन होता है जिस चीज़ को आप ओन करते हो, आप मालिकाना हक जैसे बोलते हैं। दे ओनली हैड 2 possessions इन देयर फैमिली। बोथ ऑफ देम टुक ग्रेट प्राइड इन दीज 2 things। तो वो दोनों उस चीज़ पे बहुत उनको प्राइड थी, बहुत मतलब लाइक उनको गुरूर था कि हाँ हमारे पास ये 2 अच्छी चीज़ें हैं। एंड व्हाट वर दोज टू थिंग्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग इट। One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair that reached below her knees. एक तो जिम की वॉच थी जो पहले उसके पापा की थी, फिर उसके दादाजी की थी उससे पहले, और दूसरा क्या था, डेला के लंबे बाल जो उसके घुटनों से भी नीचे थे। तो वो उस बाल उसके घुटनों से भी नीचे थे। इट फेल अबाउट हर रिपलिंग, तो वो ऐसे फोल्ड होते हुए गिरे। बहुत सुंदर उसके बाल थे, ब्राउन कलर के। वी आर ऑन नेक्स्ट पेज 104 एंड शाइनिंग लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स। तो एक ब्राउन वाटरफॉल की तरह वो बाल उसके दिख रहे थे, बहुत सुंदर थे, घुटनों तक थे, घुटनों से भी नीचे थे। इट वॉज शी हैड गॉट ब्यूटिफुल हेयर। It made itself almost a garment of her. Now garment means जब वो उनको खोलती थी तो उसके कपड़े भी घुटनों तक नजर नहीं आते थे, पूरा उसको कवर कर लेते थे। इतने सुंदर और इतने अच्छे घने उसके बाल थे, as it is said. Quickly and nervously Della did her hair up again. और जल्दी से और घबराई हुई उसने अपने बालों को दोबारा से लपेटा। She fluttered off for a minute and stood still. कुछ समय के लिए वो रुकती है और फिर एकदम से बिना हिले she looks. A tear or two drop on the floor. तो उसकी आंख से 2 आंसू गिरते हैं। But then at once she put on her brown jacket and brown hat. फिर वो एकदम से अपने ब्राउन जैकेट और ब्राउन हैट पहनती है। रिमेंबर चिल्ड्रन, इंग्लैंड में जो लोग थे, जो लेडीज़ थी,
वो भी हैट पहनती थी, तो शी वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, तो बाहर जाने के लिए ब्राउन जैकेट पहनती है और ब्राउन हैट पहनती है. शी रैन डाउन द स्टेयर एंड केम इन टू द स्ट्रीट. वो दौड़ते हुए आती है और बाहर गली में आ जाती है. विद क्विक स्टेप्स शी हरिड टू द साइड ऑफ द मार्केट. तो जल्दी जल्दी चलते हुए वो मार्केट में पहुंचती है. शी स्टॉप्ड एट अ शॉप वेयर द साइन रेड हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड. तो वो एक शॉप के बाहर रुकती है. उस शॉप के बाहर लिखा हुआ था हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड, मीन्स बालों का जो भी सामान, विग और वो सब वहाँ मिलता था. At once Della stepped in and asked, "Will you buy my hair?" तो अंदर जाते ही डेला स्टेप करती है शॉप में और पूछती है, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगे? Will you buy my hair? Yes, that's what we deal in. तो अंदर से जो जवाब आता है वो है, हाँ बिल्कुल, यही तो हमारा काम है. Said the lady at the counter. काउंटर पे जो लेडी थी उसने ये जवाब दिया, yes, this is our work, this is what we are doing. Take your hat off and let me have a look at it. तो अपनी हैट प्लीज निकाल दीजिए, मुझे देखने दीजिए कैसे बाल हैं आपके. डाउन ड्रिपल द ब्राउन कैस्केड, अगेन द सेम वर्ड इज यूज्ड. वो फोल्ड्स जो उसके बालों के गिरते हैं, ब्राउन कैस्केड इट सेड. $20 said the lady lifting the hair with a practiced hand. तो उस औरत ने बहुत बाल काट कर लोगों के खरीदे होंगे, तो उसके प्रैक्टिस्ड हैंड थे, उसको बहुत तजुर्बा था बालों का कि कितने बाल कितने के मिलेंगे, क्या वजन होगा उनका, क्या क्वालिटी है. तो वो बोलती है इसके $20 आपको मिलेंगे. गिव इट टू मी क्विक सेड डेला. तो डेला बोलती है जल्दी से दे दो मुझको. गॉन वॉज द ब्राउन कैस्केड. गॉन मीन्स नाउ, अब उसके बाल कट चुके थे. गॉन वॉज द ब्राउन कैस्केड. नाउ forget about it. The next 2 hours were spent in searching the stores for Jim's present. अब अगले 2 घंटे वो क्या करती है, अपने हस्बैंड के लिए प्रेजेंट ढूंढती है और इधर उधर यहाँ वहाँ शॉप्स पर वो जाती है. She found it at last. फिर वो मिलता है, उसको शॉप मिलती है. There was none other like it any of the store. और वो कहीं पर भी उसको कहीं नहीं मिली थी वो शॉप ऐसी, बहुत ही प्यारी. उसके ऊपर जो भी एंटीक्स थे, पड़े थे सामान जो भी. It was a platinum fob chain. It was a platinum fob chain. Platinum is a metal. It's more expensive than gold. तो वो गोल्ड वॉच के लिए एक चेन खरीदती है जो कि प्लैटिनम की है. सिंपल इन डिज़ाइन बट ब्यूटीफुल. वो दिखने में बहुत सिंपल डिज़ाइन की थी बट बहुत ही सुंदर थी. और वो प्लैटिनम की ये जो चेन है अपने हस्बैंड की वॉच के लिए वो खरीदती है. इट वॉज वर्दी ऑफ द वॉच. तो वो बोलती है कि हाँ ये तो खरीदने लायक है, जिम्स वॉच. एज सुन एज डेला सॉ इट शी न्यू इट वॉज मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स. वो देखते ही बोलती है ये तो मेरे जिम के ही वॉच के लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं. When Della reached home, her joy disappeared and she became thoughtful. Now she's very much, she's actually disappointed because she loved her hair and she had to give it off for her husband. She wanted to buy a present, but inside she was a little bit happy also that at least she was able to buy a gift for her husband. She got out her curling iron and lightened the gas. Now what she does is she had that iron which curls the hair, she wanted to curl her hair. Why? Because she thought that I'm not looking beautiful now because my hairs are gone. She's doing something for it. At least her husband doesn't notice it much. तो वो सोचती है कि शायद मैं अपने बालों को एटलीस्ट कर्ल करूँगी तो मे बी आई लुक बेटर. और वो गैस ऑन करती है कुछ बनाने के लिए. Within 40 minutes her head was covered with tiny close-lying curls. Why tiny and close-lying curl is said? 40 minutes लगते हैं उसको कर्ल करने में बालों को. और why it is said tiny close-lying curls? Because बाल छोटे हैं तो छोटे छोटे कर्ल्स तो आपस में बहुत नज़दीक हैं, छोटे छोटे कर्ल्स हैं उसके. तो वो अपने बालों को कर्ल करती है. उसको लगता है कि शायद एटलीस्ट शी विल लुक ब्यूटीफुल विद दिस. She stood before the mirror and looked at her reflection. So she looks at the mirror. She wanted to see how she's looking. She was hoping that she looks beautiful because her hairs were gone already and she was not feeling good about that. उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि बाल गए, but at least उसको लग रहा था कि कैसी लग रही हूँ. Let me see. With her curls, she looked like a truant school boy. Truant is what?
ट्रुएंट इज स्कूल में जो बिना बताए बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं और बहुत टाइम तक दे डोंट शो अप टू स्कूल, वो आते ही नहीं है स्कूल, इस तरीके के बच्चों के लिए दिस वर्ड इज यूज स्कूल बॉय. शी लुक लाइक बॉय. Why? Because her hairs were gone now. If Jim doesn't kill me before he takes a second look at me, said Della to herself. तो वो यही सोचती है कि उसका हस्बैंड कहीं उसको उसको अच्छा नहीं लगेगा. And she says, I hope he doesn't kills me before he takes a second look, said Della. But what could I do? मैं कुछ और कर ही नहीं सकती थी. She thinks, oh, what could I do with $1.87? Now she knew that what she had done is, she feels it's right because she wanted to buy a gift and she was not having enough money. At 7 o'clock, at 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was ready to cook the chops. So at 7 o'clock, her husband reaches at home every day. So she was ready to cook the chops for him and the pan was ready for frying the chops for him. So the rest part we will be doing in our next class. So children, I hope you all read this chapter now. Page number 103 and 104 thoroughly. Underline the words which you all find difficult or which are not easy for you. Learn the spellings. If you all have if you all have any confusion, you all can go through this video again and again. And I had explained it in very simple language. So see you soon, children. Bye bye.